Hi everyone, welcome you all to my channel. Today in the part 10 of human reproduction, we are going to study menstrual cycle. Okay, so here the question comes in our mind what it is. So here in the cycle, gamete formation takes place. Okay, in the female body, gamete formation takes place. Now what is the gamete here? That is ova. Okay, female gamete is ova, and what is male gamete? It is sperm. So here the ova is formed in the menstrual cycle. This cycle completes in around 28 to 29 days. Okay, if we are talking of the normal menstrual cycle, it completes in 28 to 29 days. So this is what is gamete formation in female is a cyclic activity that takes around 28 to 29 days. It is what we call the menstrual cycle. Okay, now what is menarche and menopause? Menarche is the first menstruation, okay, which starts at the puberty. So in the girls attain puberty at the age of around 11 years. ठीक है, तो जब start होता है first menstruation, that is called menarche. Menopause is the name, as you can see, pause means stop, तो रुक जाता है. Okay, it stops at the age of around 45 to 50 years. ठीक है, start होता है 11 years से और समथिंग नियर बाय 45 to 50 ईयर्स पे ये स्टॉप हो जाता है. दैट इज़ व्हाट वी कॉल मीनोपॉज. सो ओके, तो फर्टिलिटी पीरियड कितना है? हाउ मच फर्टिलिटी पीरियड इज देयर इन गर्ल्स? 11 ईयर्स से स्टार्ट हुआ 45 ईयर्स तक, तो इट इज नियर बाय अराउंड 32 to 33 ईयर्स ये फर्टिलिटी पीरियड है. ठीक है, एंड नाउ यू नो दैट इन एवरी मंथ वन एग इज रिलीज्ड बाय द ओवरी. ठीक है, तो एक को पता है कि साइकिल कितने डेज में कंप्लीट हो रही है? 28 डेज में कंप्लीट हो रही है ये साइकिल. तो इन अ ईयर हाउ मेनी एग्स आर रिलीज्ड? समवट 13. ठीक है, कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं. अगर हम 28 डेज लेके चल रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को, तो इन अ ईयर अराउंड 13 एग्स आर रिलीज्ड. राइट नाउ if we talk about fertility period, that is of around 32 years. So in a 32 years, how many eggs are produced? Around 13 into 32, that is around 416. Getting my point? तो इतने ही एग्स फर्टिलिटी पीरियड में रिलीज हो रहे हैं. ठीक है, तो आपको ये पता है जब बर्थ होता है बेबी का, आई एम टॉकिंग ऑफ फीमेल बेबी, तो एट दैट टाइम इन द ओवरी अराउंड 2 million फॉलिकल्स आर देयर. ठीक है, इतने फॉलिकल्स होते हैं. बाय द टाइम ऑफ प्यूबर्टी देयर नंबर रिड्यूसेस एंड इट बिकम्स अराउंड 60,000 to 80,000 समवॉट. ठीक है, इतने कम रह जाते हैं. अब उसमें से भी यू कैन सी दैट ओनली 416, नियर बाई 400 to 500, ओनली दीज एग्स आर गेटिंग मेच्योर. इतने ही फॉलिकल्स हैं जो मेच्योर होके एग बना रहे हैं. ठीक है, बाकी सबका क्या होता है? दे अंडरगो एट्रीशिया, मीन्स उनके श्रिंकिंग हो जाएगी, डिजेनरेट हो जाएंगे. तो यू कैन सी दैट ओनली दिस मच आर गेटिंग चांस टू मेच्योर, टू रीच द मेच्योरिटी. राइट, so here now coming back to the point, menstrual cycle can be described by ovarian and uterine cycle. Ovarian cycle and uterine cycle. So during the menstrual cycle, changes takes place in ovaries as well as in the uterus. Right, ovaries में भी changes हो रही हैं, uterus में भी. Simultaneously at both places changes are taking place. So both the cycles are divided into two phases. Ovarian cycle phases are follicular phases and luteal phases. ठीक है, ओवेरियन साइकिल जो ओवरी में चेंजेस हो रहे हैं वो दो में डिवाइडेड हैं, फॉलिकुलर और ल्यूटियल फेज. फॉलिकुलर फेज में तो फॉलिकल्स ग्रो होते जाते हैं. ठीक है, और ल्यूटियल फेज में क्या बन जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम. राइट, तो ये दो फेजेस में डिवाइड हो गए. ठीक है, अच्छा, वन मोर थिंग, यू नो दैट व्हाट आर फॉलिकल्स? You know about primary oocyte? Okay, primary oocyte is surrounded by granulosa cell. Right, now this structure is what we call follicle. ठीक है, इसको बोलते हैं follicle. तो आपने देखा है by the time of birth primordial follicles होते हैं, numerous primordial follicles are there. ठीक है, फिर बाद में प्यूबर्टी के टाइम पे बहुत कम रह जाते हैं. फिर प्राइमरियल फॉलिकल से प्राइमरी बनता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्शियरी फॉलिकल, देन ग्रेफियन फॉलिकल. राइट, ऐसे ऐसे उनका मैच्योरेशन होता है. तो दैट इज़ व्हाट हैपनिंग इन द फॉलिकुलर फेज. एंड आफ्टर फॉलिकल नेक्स्ट फेज इज द luteal phase in which the corpus luteum is formed. Right,
Now what are the changes in uterine cycle? Uterine cycle is also divided into two phases, proliferative and secretory phase. In proliferative phase, the layer that I am talking of the uterus layer, okay, inside one, that is what we call endometrium layer, ठीक है, उसमें proliferation होता है, okay, rapid increase होती जाती है वो. और secretory phase में उसी लेयर से endometrium layer से some glands are there which start secreting a nutrient fluid that happens in the secretory phase. So both these phases, I am talking of follicular and proliferative and luteal and secretory phase, somewhat they are simultaneously they are occurring. So let's see with the help of our diagram. Okay, here is a diagram which depicts everything related to menstrual cycle, and just see what is happening over here. So on as and when the girls attain maturity, not maturity, we can say puberty, okay, that is around the age of 11 years. So when the female attains puberty, at that time the hypothalamus gland starts secreting a GnRH hormone. GnRH full form is गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ये रिलीज होना शुरू हो जाता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड से. नाउ दिस GnRH हार्मोन स्टिमुलेट द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसकी एंटीरियर लोब मीन्स फ्रंट लोब. इट स्टार्ट सिक्रेटिंग FSH हार्मोन. FSH फुल फॉर्म इज follicle stimulating hormone. So as the name suggests, follicle stimulating, so it is stimulating the follicles. It helps in the growth of the follicles, ठीक है, ये follicles जो grow हो रहे हैं, it is because of the FSH hormone, right? Getting my point? Clear? तो anterior hypothalamus gland से GnRH secrete होगा, वो stimulate करेगा anterior lobe pituitary gland की, which secrete FSH hormone. FSH hormone helps in the growth of the follicle. So this phase is called follicular phase, right? These are the events which are occurring in the ovaries. So this is what we call ovarian cycle, and these events are occurring in the uterus. This cycle is uterine cycle, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को? ओके, तो FSH आ गया, follicles grow होना शुरू हो गए. As and when the follicles are growing, the growing follicles start secreting estrogen hormone, ठीक है, कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन. अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, तो हम देखते हैं. एस्ट्रोजन 3 फंक्शन होते हैं एस्ट्रोजन के. फर्स्ट इज इट सेंड अ पॉजिटिव फीडबैक टू द पिट्यूटरी ग्लैंड टू सेंड द LH हार्मोन. सेकेंड इज नेगेटिव फीडबैक टू द पिट्यूटरी ग्लैंड टू इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ FSH hormone. Third function is the proliferation of the endometrium layer, ठीक है, ये किसके फंक्शन है? एस्ट्रोजन हार्मोन के. These are the function of estrogen hormone, very important. First is it send the positive feedback to the pituitary gland. I am talking of the anterior lobe only, okay. Anterior lobe को stimulate करता है to secrete which hormone? LH hormone. What is the full form of LH? Luteinizing hormone. This is LH hormone, ठीक है. Second function is it send negative feedback to the FSH. एंटीरियर लोब को नेगेटिव फीडबैक देता है जिससे कि FSH की एक्टिविटी और कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, राइट. एंड थर्ड इज at the same time it helps in proliferating the endometrium layer. Getting my point? This is what is the proliferation phase in which the endometrium layer rapidly increases, ठीक है. इसमें ब्लड वेसल्स आ जाएंगे, ब्लड वेसल्स बहुत कॉइल बन जाएंगी, ये सब चेंजेस होते हैं एंडोमेट्रियम लेयर में, ठीक है. तो एस्ट्रोजन के 3 फंक्शन समझ गए. अब ऐसे ही जैसे ही इसने एक्टिवेट किया LH हार्मोन को, LH हार्मोन आ गया. LH हार्मोन भी 3 काम करता है, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं. LH हार्मोन के 3 कौन कौन से काम है? फर्स्ट इज इट स्टिमुलेट ग्रैन्युलोसा सेल टू सिक्रीट somewhat a very small concentration of progesterone hormone. So remember this, before ovulation also little bit of progesterone is secreted, right.
अभी इसको ना, इसका भी बहुत यूज़ है, क्योंकि आपने देखा है व्हेन देयर इज़ अ at the peak, when the LH is at the peak, at that time there is a peak of FSH hormone also. ठीक है, ग्राफ आपने जब भी देखा होगा इसका ग्राफ, तो उसमें देखा होगा जो LH होता है वो भी उस टाइम पे पीक पे होता है, और FSH भी होता है लेवल, FSH की लेवल भी, देखो ग्रीन से मैंने आपको दिखाया हुआ है, FSH इज हियर हाई हियर ओवर एंड एट अगेन हियर ऑल्सो. सो हाउ इट बिकम्स हाई ओवर हियर, इसकी कंसनट्रेशन यहाँ कैसे बढ़ी? It is because of the progesterone hormone that is secreted by the LH hormone. Not by LH hormone. LH hormone stimulates the granulosa cell, and these cells secrete the progesterone hormone. तो very important thing here is that granulosa cells के पास रिसेप्टर है LH के भी और FSH के भी, है ना, दोनों के रिसेप्टर हैं उसके पास. LH हार्मोन भी जा सकता है वहाँ पे और FSH हार्मोन भी. ठीक है. सेकेंड फंक्शन इसका है, इट मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कॉर्पस ल्यूटियम कौन मेंटेन कर रहा है? LH. LH है तो कॉर्पस ल्यूटियम है, नहीं तो नहीं है. ठीक है. थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इट इज that it changes the primary oocyte to secondary oocyte and finally the ovulation. So it helps in ovulation. When the LH hormone is at the peak, जब सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है LH की, at that time ovulation occurs and it is on the 14th day of the cycle. जैसे मैंने बताया साइकिल कितने डेज की होती है? 28 डेज की. 14th डे पे LH हार्मोन इज एट द पीक. ठीक है, आपको पीक दिखाते हैं. ये जो ब्लू से मैंने दिखाया है ये LH हार्मोन की पीक है. हियर इट इज़ एट द पीक ऑन द 14th डे. एट दैट टाइम द ओव्यूलेशन अकर्स. ठीक है, समझ गए यहाँ तक? ओव्यूलेशन तक सब क्लियर हो गया? अगेन वी आर रिपीटिंग. देखो, एस्ट्रोजन का क्या काम था? LH हार्मोन को सिक्रीट करना. ठीक है, एस्ट्रोजन जब लेवल बढ़ता जाता है तो एंटीरियर लोब जो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब स्टिमुलेट हो जाती है और LH हार्मोन सिक्रीट हो जाता है. ये तो पॉजिटिव फीडबैक है एस्ट्रोजन का. ऑन द सेम हैंड इट सेंड द नेगेटिव फीडबैक टू स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ FSH हार्मोन. तो यू कैन सी यहाँ पे FSH बढ़ा है, फिर से कम हो जाएगा. ठीक है, तो FSH की कंसनट्रेशन कम कर दी किसने? एस्ट्रोजन ने. थर्ड फंक्शन इज इट हेल्प्स इन द प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियल लेयर. राइट, ये तो क्लियर हो गया एस्ट्रोजन का काम. नाउ अबाउट द LH हार्मोन. LH हार्मोन क्या करेगा? ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं, दीज आर द ग्रेन्युलोसा सेल्स, इट स्टिमुलेट द ग्रेन्युलोसा सेल्स. ठीक है, ये आपको रिसेप्टर दिख रहे हैं, ये रिसेप्टर होते हैं, ये रिसीव करेंगे. तो इट स्टिमुलेट द ग्रेन्युलोसा सेल्स टू सिक्रीट a small concentration of progesterone hormone, so that progesterone hormone again send the positive feedback to the anterior lobe to secrete FSH hormone, because LH and FSH they both helps in ovulation, right? But high concentration of LH is needed. ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पॉजिटिव फीडबैक भेजेगा. ये LH ने काम किया. तीसरा LH ने क्या काम किया? प्राइमरी oocyte को सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट करेगा एंड फाइनली इट हेल्प्स इन ओव्यूलेशन. ठीक है, it helps in ovulation. Very important. Luteinizing hormone helps in ovulation, and it also helps to maintain the corpus luteum. This is a yellow color body which is formed out the granulosa cells. ठीक है, ये जो बनेगी बाद में वो कौन सी बॉडी है? ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम है. यहाँ तक सब क्लियर हो गया? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फेज दैट इज व्हाट वी कॉल ल्यूटियल फेज. ठीक है, ल्यूटियल फेज में क्या हो रहा है? ल्यूटियम बन रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम. ठीक है, अब ये जो बॉडी बनी है, इट सिक्रेट्स प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड लिटिल बिट ऑफ एस्ट्राडायल हार्मोन. एस्ट्राडायल इज एस्ट्रोजन हार्मोन ओनली. ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन में प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, लो कंसंट्रेशन में एस्ट्राडायल सिक्रीट करता है. नाउ हियर दिस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. फर्स्ट रोल इज इट स्टिमुलेट द एंड्रोमेट्रियल ग्लैंड टू सिक्रीट अ न्यूट्रिटिव फ्लूइड. दिख रही है, या ब्लू से मैंने आपको फ्लूइड दिखा रहा है, ये सिक्रीट होता है एंड्रोमेट्रियल ग्लैंड से. दिस फ्लूइड इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द फीटस ग्रोथ. ओके, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया और फीटस ग्रो होने शुरू हो गया तो यहाँ को न्यूट्रिएंट कौन देगा? ये एंड्रोमेट्रियल ग्लैंड से ही उसको न्यूट्रिएंट मिलेंगे. ठीक है. सेकेंड, इट हेल्प्स इन इम्प्लांटेशन. ठीक है, इम्प्लांटेशन यहाँ पे जो होता है एंड्रोमेट्रियल लेयर पे,
तो इम्प्लांटेशन में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही हेल्प करता है. You know that when the lady is pregnant, in the starting only this progesterone tablets are given. ठीक है, क्यों दी जाती हैं? जिससे इम्प्लांटेशन हो जाए, राइट. तो प्रॉपर इम्प्लांटेशन के प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट्स आती हैं. ठीक है, दो फंक्शन हो गए. प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एक तो स्टिमुलेट करेगा एंडोमेट्रियल ग्लैंड को टू सिक्रीट फ्लूइड, न्यूट्रिएंट फ्लूइड. सेकंड, इट हेल्प्स इन इम्प्लांटेशन. थर्ड, इट हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्राडायोल इनहिबिट द कंसंट्रेशन ऑफ FSH और LH. ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन को कम करेगा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्राडायोल हार्मोन. क्यों कम करेगा भाई? अगर ये कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी तो भाई फॉलिकल्स और मैच्योर होते जाएंगे और ओव्यूलेशन होता रहेगा. नहीं होना चाहिए ना, ओव्यूलेशन हमें स्टॉप करना है. तो इसलिए प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? नेगेटिव फीडबैक भेजेगा. आई एम टॉकिंग ऑफ हाई कंसंट्रेशन. अभी आपने देखा था ओव्यूलेशन से पहले LH हार्मोन ने स्टिमुलेट किया था ग्रैन्युलोसा सेल्स को. उन ग्रैन्युलोसा सेल्स ने स्मॉल अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट किया था जो पॉजिटिव फीडबैक दे रहा था FSH को. ठीक है, अब हाई कंसंट्रेशन, वी आर टॉकिंग ऑफ हाई कंसंट्रेशन में इट सेंड अ नेगेटिव फीडबैक सो दैट FSH एंड LH हार्मोन के कंसंट्रेशन स्टार्ट डिक्रीजिंग. ठीक है, क्लियर है ना. इफ द फर्टिलाइजेशन डजंट अकर, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो यू नो दैट प्रोजेस्टेरॉन तो LH की एक्टिविटी कम कर रहा है, कंसंट्रेशन कम कर रहा है. और इन द एंड एज आई सेड दैट LH इज़ वेरी यूजफुल फॉर मेंटेनिंग द कॉर्पस ल्यूटियम. अब LH की कंसंट्रेशन कम होगी तो ऑटोमेटिकली कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट डीजनरेटिंग. ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगी और इट मेक्स अ डीजनरेटिंग बॉडी दैट इज कॉल्ड कॉर्पस एल्बिकन्स. ठीक है, कॉर्पस एल्बिकन्स कॉर्पस ल्यूटियम की डीजनरेटिंग बॉडी बन गई. अब क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम तो भाई डीजनरेट हो रहा है, तो क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन लेवल ऑल्सो डिक्रीजेस, तो हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो डिक्रीजेस, क्योंकि ये तो कॉर्पस ल्यूटियम ही बना रहा है ना. तो जब कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं रहेगा तो प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं रहेगा ना. प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्राडायोल की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? एक तो सेकेंडरी oocyte जो निकला था, ये सेकेंडरी oocyte था ना, ये ऑटोलाइसिस हो जाएगी इसकी. ठीक है, एंड एज एन सेम टाइम दिस लेयर एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती हैं इट डाइज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. ये डाई हो जाएंगी और इट्स स्लोड ऑफ. ठीक है, स्लोड मीन्स बाहर निकल जाएंगी. ब्लड वेसल्स जो होती हैं ये रप्चर हो जाएंगी एंड द ब्लीडिंग अकर्स. ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाती है. प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम होने की वजह से जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ये डाई हो जाएंगी, इनकी वेसल्स रप्चर हो जाएंगी और क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग. दैट इज़ व्हाट वी कॉल मेंस्ट्रुएशन. ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक ना. लोअर लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्राडायोल, इनकी लेवल कम हो रही है ना, इट कॉजेज रिलीज ऑफ FSH. ठीक है, मेंस्ट्रुएशन हो गया, इनकी लेवल कम, प्रोजेस्टेरॉन की लेवल कम हो गई थी, मेंस्ट्रुएशन हो गया था, तो प्रोजेस्टेरॉन की लेवल कम होने से FSH की लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगी. ठीक है, FSH हार्मोन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और फिर से नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, FSH के रिलीज होने से न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाएगी. गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज व्हाट इज menstrual cycle. Okay, so here you can see this is the graph. By the green color I have shown the FSH hormone. ठीक है, it increases here when the follicles are growing and at the time of ovulation. Then LH is at the peak at the time of ovulation. तो जब से ये peak इंक्रीज होना शुरू हो जाती है इट इज़ व्हाट वी कॉल LH सर्ज. यहाँ से ये बढ़ना शुरू हो गया ना LH, तो दिस इज व्हाट वी कॉल LH सर्ज and this is the peak of the LH hormone. Now here you can see this is what is estrogen hormone. It increases here as well as here when the corpus luteum is there. ठीक है, corpus luteum क्या secrete करेगा? प्रोजेस्टेरॉन. तो you can see progesterone is increasing when the corpus luteum is formed, right? Getting my point? सब clear है? ओके, सो दिस इज प्रोलिफरेटिव फेज, दिस इज सिक्रेटरी फेज. सिक्रेटरी फेज से क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक सिक्रीशन होता है एंडोमेट्रियल ग्लैंड से. ये ल्यूटियल फेज है क्योंकि भाई यहाँ पे ल्यूटियम बॉडी बन रही है. दिस इज फॉलिकुलर फेज बिकॉज फॉलिकल्स आर ग्रोइंग. दिस इज प्रोलिफरेटिव फेज बिकॉज एंडोमेट्रियम लेयर इज इंक्रीजिंग. ठीक है, वेरी इजी, राइट? ओके,
अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होगा। इफ़ फर्टिलाइजेशन अकर्स एंड फीटस इज इम्प्लांटेड, सपोज फर्टिलाइजेशन हो गया, फीटस इम्प्लांट हो गया यहाँ पे, एंड यू नो दैट प्रोजेस्टेरॉन लेवल तो कम हो गया था, ठीक है, तो क्या होगा। अब जो फीटस है, फीटस की प्लेसेंटल सेल्स जो होती हैं, उन प्लेसेंटा के पास ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती हैं, वो भी आगे आप पढ़ेंगे। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं, दे स्टार्ट सिक्रेटिंग HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रैपिन, ठीक है। HCG हार्मोन स्टार्ट सिक्रेटिंग बाय द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। अब ये जो हार्मोन है, दिस हार्मोन एक्ट एज अ LH हार्मोन। HCG हार्मोन का काम जो है LH की तरह से ही है। LH का काम क्या था, कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रखना, तो ये सेम यही काम करेगा। कॉर्पस ल्यूटियम, इट मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम विच इन टर्न मेंटेन्स द सिक्रेटरी फेज, राइट, एंड हेल्प्स इन द इम्प्लांटेशन, ठीक है, राइट, क्लियर। So this is what the HCG role is here. Now you know, very interesting name, weeping of uterus for the lost ovum. You know, menstruation is called weeping of the uterus for the lost ovum. Weeping, भाई ओवम क्या रिलीज हो गया यहाँ से, बेचारे का ओवम निकल गया, ठीक है, ओवम निकल गया तो क्या करेगा, खून के आंसू रोने पड़ जाते हैं उसको, तो वहाँ पे बेचारा रोने लग जाता है। It is very funny ना। Menstruation is what we call weeping of uterus for the lost ovum. ओके, प्रेगनेंसी टेस्ट क्या होता है, इस प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, उसमें HCG हार्मोन इज मेजर्ड, यूरिन में HCG हार्मोन सिक्रेट होता है। अगर HCG हार्मोन है तो दैट लेडी इज़ प्रेग्नेंट, ठीक है। प्रेग्नेंट न्यूज़ वगैरह आजकल आते हैं, उसमें उससे ये चेक किया जाता है, यूरिन चेक किया जाता है। इफ़ HCG इज प्रेजेंट इन द यूरिन दैन द लेडी इज प्रेग्नेंट, राइट। नाउ हियर द क्वेश्चन कम्स, व्हाट आर द ओवेरियन हार्मोन्स हियर। Name the two ovarian hormone. So they are the estrogen and progesterone, and the pituitary gland hormone are LH and